Hello, welcome back to my entrepreneurship class. Entrepreneurship for 12th standard. My dear student, this topic today we are going to learn here PESTEL model. PESTEL PESTEL model. I would like to tell you one thing. This topic is not important only for 12th standard entrepreneurship but also for business studies and for BBA etc. These are the factors of external environment. When we learn the business studies of 12th standard, we come to know the third chapter, business environment. In that very chapter, you have been discussed two factors, environment, internal environment, external environment. And to learn the external environments, there are five factors, that is political, economical, social, technical, legal. But here one more factor you can see here, that is ecological. Now I am telling you P for political, E for economic, S for social, T for technical, E for ecological, L for legal. These all the factors of environment are very important to grab the opportunity in the environment, to see the threat in the environment for any business enterprise. If any business enterprise see the opportunity in the environment, then it can make some policies and strategies for the future to grab that very opportunity and to have the big profit and to have the long survival in the future. As well as if any business entity see any threatening by analyzing these factors of environment, any threatening, then it can make some policies or strategies to avoid that very threatening, to cope up with the threatenings or the changes in the environment which may cause the losses in the future. Now we are talking about the political factor here. Political factor. When you are talking about a political factor, what is political factor? There may be the change in the government. Change in the government of the different parties. For example, now the government of BJP party is going on. Before few years, Congress party, different blah blah. The different types of government make some different types of policies for the business enterprises. Some policies may be in the favoring of some enterprises, vice versa may be not favoring to some enterprises. कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो अपनी पॉलिसीज बनाती हैं, वो किसी भी रिगार्डिंग हो सकती हैं, कोई रिलीफ हो सकता है, तो कुछ को तो फायदा होता है, कुछ को नुकसान हो सकता है. फॉर एग्जांपल, यदि आज कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है और कहती है कि एंटरप्रेन्योर्स को जितना लोन चाहिए अप टू 20 लाख ले, 20 लाख तक विदाउट एनी इंटरेस्ट, तो क्या होगा? स्मॉल स्केल पर जितने भी बिजनेसमैन हैं बढ़ जाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट देयर प्रोडक्शन. तो इनको बेनिफिट जैसे ही पहुंचेगा, दूसरी जगह जो लार्ज स्केल पर बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको तो कोई सपोर्ट नहीं, वहां उनके कहीं ना कहीं बिजनेस पर फर्क पड़ जाएगा. एक तरफ तो कहीं अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं किसी के लिए थ्रेटनिंग है. दोनों को उसी हिसाब से अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, उसको अवेल करनी है, फायदा उठाना है, दूसरे को अपनी थ्रेटनिंग के लिए कोई पॉलिसीज बनानी है. तो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, कुछ अलग अलग पार्टीज की होती हैं, वो पॉलिसीज वगैरह बनाती हैं. फॉर दिस आई कैन गिव यू द एग्जांपल. इन 1977 देयर वाज अ गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी. जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी 1977 में, तो कोको कोला कंपनी थी. एग्जांपल दे रहे हैं इसके लिए, कोको कोला कंपनी थी. तो इन्होंने क्या किया था, फॉरेन कंपनीज को बाहर जाना पड़ा था कुछ इनकी पॉलिसीज की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से. जैसे ही कोको कोला कंपनी बाहर गई, इंडिया से अपना बिजनेस लेकर गई, तो कोको कोला कंपनी को itself that was a loss. And on the other hand, to all those businessmen who were depend on the Coca Cola company had to bear the loss. जैसे कोको कोला कंपनी उसको तो लॉस हुआ ही, जो दूसरे बिजनेसमैन थे उनको भी लॉस हुआ जो कि कोको कोला कंपनी पर डिपेंड थे. ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जो दूसरे लोकल ब्रांड थे आपके, जो लोकल सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, उनको बेनिफिट हुआ कोको कोला के जाने से. तो
कुछ को फायदा होता है, कुछ को नुकसान होता है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक, this may be the interest rate of the banks or the investments, or you can say per capita income, per product। तो जब आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, डिमांड की बात करते हैं, सप्लाई की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक आता है। यदि जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है तो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, उसकी सेल इंक्रीज हो जाती है, कुछ बिजनेसमैन को फायदा होता है। यदि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात लेना चाहते हैं बैंक की, मैनी टाइम्स बैंकर्स especially specialized financial institutions start to give the loans at the reasonable rate, or the you can say lower rate to the businessman. It gives a good benefit to those businessmen who are going to run their business in the categories defined by such institutions or the bankers or the government. कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जैसे नाबार्ड, स्फूर्ति, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, ये बैंक्स क्या करते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड स्कीम्स के अकॉर्डिंग कुछ एंटरप्रेन्योर्स या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बैंक लोन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनके रेट सस्ते होते हैं। तो जैसे ही बैंक रेट सस्ता हुआ तो कुछ बिजनेसमैन को फायदा हुआ, वहीं उनको लॉस होगा जो पहले से ही हाई रेट पर लोन लेकर रखे हुए हैं दूसरे बैंक से और बिजनेस कर रहे हैं। और ये लोन अलग अलग स्कीम्स के थ्रू, अलग अलग कैटेगरीज के थ्रू, कैटेगरीज में बिजनेसमैन को, एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट, social factor. When we are talking about social factor, it may be the social factor, needs, wants, demands, or fashion, you can say the style of the society continuously get changed. Accordingly, the demand of the product of the society also get changed, which create the challenge for the enterprises, especially those enterprises who have ready their product to sell. किसी एंटरप्राइज के पास उसके प्रोडक्ट है, सेल करने के लिए पहले से ही तैयार है, और अचानक से मार्केट में आपकी सोसाइटी का फैशन चेंज हो जाए, इंटरेस्ट चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, तो उसकी वजह से प्रॉफिट लॉस होता है। और ये सोसाइटी क्या है, सम आर लिटरेटेड, इलिटरेटेड, एजुकेटेड, यू कैन से नॉन एजुकेटेड, और सम रिलेट टू रूरल एरिया, सम रिलेटेड टू अर्बन एरिया, एटसेट्रा, कास्ट, रिलीजियस, जेंडर, एज, ये सारी चीजें ना आपके प्रोडक्ट की डिमांड, सर्विस की डिमांड, स्टाइल वगैरह पर डिपेंड करती हैं कि वो क्या चाह रहा है। तो ये भी चेंज होता रहता है। इसके हिसाब से किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज को अपने प्रोडक्ट या सर्विस डेवलप करने होते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्निकल। When we are talking about technical or technology, it is a, you can see in new era, आज के जमाने में it is a most important tool to give the competition to someone. न्यू टेक्नोलॉजिकल मशीनरीज आती हैं, अपडेटेड टेक्निकल मशीनरीज आती हैं, तो क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा रीजनेबल प्राइस पर, अच्छी क्वालिटी के साथ। तो जिस एंटरप्राइज के पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी की मशीनरी होगी वो अच्छे से प्रोडक्ट कर पाएगा, अच्छी क्वालिटी का निकाल पाएगा, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे पाएगा, और ज्यादा आउटपुट देने से एक लिमिट तक उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है। टेक्नोलॉजी सबसे प्यारा टेक्निकल नॉलेज का ये हम बात कर सकते हैं मोबाइल फोन्स की। आए दिन नए नए मोबाइल फोन्स आते रहते हैं। मैं आपको बता दूं मार्केट के अंदर 8G मोबाइल आ चुका है। सुनकर अजीब सा लगा, मैं आपको अजीब सा नहीं लगाना चाहता था, आपके माइंड में आया होगा यार 5G आने वाला, उसको खरीद लें, लेकिन आपने प्लान बनाया होगा 2 दिन बाद का, और मैं कह रहा हूं 5 दिन बाद 8G आने वाला है न्यूज़पेपर में। तो क्या आप 5G परचेज करेंगे? आप परचेज करें ना करें, लेकिन बट दिस इज द डेंजर टू दोज मोबाइल कंपनीज हु हैव वर्कड ऑन द 5G mobiles and who are going to launch the 5G mobile after 2 days. Now they are in danger because of this technology that some companies have worked on 8G and are going to launch 8G after 5 days. तो मोबाइल फोन्स टेक्नोलॉजी 5G का आपको लॉस हो सकता है उन कंपनीज को जिनको पता है कि यार बन चुके हैं, 2 दिन बाद लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज
8G मोबाइल 5 दिन बाद लॉन्च करने आ रही है, तो अच्छा सा डेंजर हो सकता है टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने मशीन अपडेटेड टेक्नोलॉजी की मशीनरी का दिया एग्जांपल और मोबाइल फोन का दिया इस तरीके से। नेक्स्ट इकोलॉजिकल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फैक्टर इकोलॉजिकल, ये बिजनेस स्टडीज में नहीं है, एंटरप्रेन्योरशिप में रखा गया है टॉपिक, बाकी बिजनेस स्टडीज में थे इकोलॉजिकल को छोड़कर। इकोलॉजिकल वी आर टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट। क्यों रखा है इस फैक्टर को बेटा, चाहे हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो, जो हमारी लेबर होती है, एम्प्लॉयज होते हैं जो वर्क करते हैं हमारे अंदर, वो हमारे सोसाइटी से निकल कर आते हैं, या हमारे पास जो रॉ मटेरियल आता है वो भी हमें आसपास से निकल कर आता है। यदि हम अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखते हैं, पॉल्यूशन फ्री या मिनिमम पॉल्यूशन, तो हमारे पास जो लेबर आएगी, वर्कर आएगा, वो हेल्दी आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ आएगा कि काम कर सके, और जो हमारे हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वो भी अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा। तो ये फैक्टर क्या करता है इकोलॉजिकल, कि आपको ये सिखाता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हेल्दी लिविंग होना चाहिए, ताकि वो हेल्दी वर्किंग हो सके और पॉल्यूशन फ्री रह सके। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं, एंड दे आर वेरी कॉन्शियस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। For this purpose, they may take any action against those enterprises who are polluting the environment also. तो आपका ये फैक्टर क्या कहता है कि ठीक है यार, ऐसे एक्शन लिए जाएंगे कुछ एनजीओस के थ्रू कि केस वगैरह कर दें, कुछ कर दें, तो इससे तो अच्छा एनवायरनमेंट को आप पॉल्यूट ना ही करें। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल फैक्टर। लीगल फैक्टर देखिए, चाइल्ड लेबर एक्ट, बच्चों से काम कराना सस्ता पड़ता था, लेकिन जब से ही चाइल्ड लेबर एक्ट आया है तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों से काम नहीं करा सकती। वो काम क्या क्या है, वो लेबर एक्ट के हैं जो लेबर के लिए काम आते हैं, मींस बच्चों से काम करा सकते हैं लेकिन लेबर वाला नहीं। कौन से काम लेबर वाले हैं वो एक्ट में डिफाइन है। तो जो काम सस्ता हुआ करता था अब वो सस्ता नहीं रहा, क्योंकि आप बच्चे से काम ना करा के बड़े से कराएंगे, वो चार्ज शायद ज्यादा लेगा। चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, दुनिया भर के नए नए एक्ट आते हैं, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, सेल्स एंड गुड सर्विस एक्ट हो गया। इतने एक्ट्स आते हैं, वो कहीं ना कहीं बिजनेस एक्टिविटीज पर, बिजनेस ट्रांजैक्शंस पर असर डालते हैं। दे ऑलवेज लीव एन इंपैक्ट, मे बी फेवरेबल और अनफेवरेबल on the business transactions. So it is required to be touched in the factor of the, in this factor of the environment of the external environment of the business. So ये आपके पेस्टल मॉडल था। I hope that you have got this pastel model. If this video is purposeful for you, give a like, and if you are having any query, leave a comment or give a WhatsApp reply. I will make next video accordingly, so that there may not be any type of doubt in your mind. If you like this video, give the thumbs up and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.